energy. So electron revolves around nucleus in circular path without losing or gaining energy. So this circular path where electron revolves without losing or gaining energy, that circular path is called as the shell. Okay, what are other name for shell? Shell is also called as orbit or principal quantum number. Right? These are the other names for shell. Okay. So class, if you know, okay, shell is represented by symbol small n. Small is the symbol for the shell to which electron belong. So if I say the electron which I am talking about has n equal to 5, matlab kya? That electron has n equal to 5, matlab electron is present in the fifth shell. shell. N equal to 9, matlab electron is present in the 9th shell and so on. So if you know the value of n, you can tell in which shell electron is present. Okay. Well, once you come to know in which shell electron is present, we can also tell the maximum capacity of that shell to hold the electrons. वो shell कितने maximum electrons को hold कर सकता है? So first shell has maximum capacity of 2 electrons, 2 into 1 square. Second shell has maximum capacity of 8 electrons. Third shell 2 into 3 square, that is maximum capacity of 18 electrons. Fourth shell has maximum capacity of 32 electrons. Fifth shell has maximum capacity of 50 electrons and so on. Are you clear? Yes. Once you know electron belongs to which shell, you can tell the energy of electron in that shell. So energy of electron in n shell, we have formula En. So by putting n ka value 1, you can find energy of electron in first shell, 2, second shell, 3, third shell, and so on. We can also tell the radius of the orbit. So if electron is present in the first shell, what is the radius of first orbit? If electron is present in second shell, what is the radius of second orbit? And so on. So Rn, so by putting value of n, we can tell the radius of the orbit, right? Rn. So if I put Rn equal to 1, radius of first orbit, n equal to 2, radius of second orbit, n equal to 5, radius of fifth orbit, and formula याद रखो, important है बहुत ज़्यादा JEE के लिए, NEET के लिए. We can also tell the velocity of electron in given shell. If I say electron is present in the first shell, so V1, the velocity in first shell will be 2.18 10 power 6 Z upon 1. If I say velocity of electron in 9 shell, so V9 will be equal to 2.18 10 power 6 Z upon 9 and so on. So 4 things we come to know if you know the shell to which electron belongs. Number 1, उस शेल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं. नंबर 2, उस शेल में इलेक्ट्रॉन का एनर्जी क्या हो सकता है. नंबर 3, उस शेल का रेडियस क्या हो सकता है. नंबर 4, उस शेल में इलेक्ट्रॉन का वेलोसिटी क्या हो सकता है. एनी डाउट हियर? No. ओके. तो क्लास शेल कंसिस्ट ऑफ सब शेल्स, राइट? शेल्स में क्या होता है? सब shell. सब शेल. तो शेल कंसिस्ट ऑफ सब शेल. So everyone knows first shell has only one shell. Sorry, first shell has only one subshell. Which subshell? S. S subshell. The first shell has only S subshell. The first shell has only S subshell, and plus S subshell can have maximum 2 electrons. So 2 electrons can be present in S subshell. Okay. Plus if you go in second shell has 2 subshells. Subshell. S subshell and C subshell. P subshell. Second shell contain S subshell and P subshell. Okay. S subshell has maximum capacity of 2 electrons. 2 electrons. and P subshell has maximum capacity of 6 electron. total electron in second shell will be 8 8. electrons. right? Good. Third shell has S subshell, Subshell. P subshell and D subshell. right? subshell. Third shell में 3 subshell होते हैं, S, P and D. S has capacity of 2 electrons, P subshell has capacity of 6 electrons, D subshell has capacity of 10 electrons. but total maximum electron in third shell can be 18. 18. S में 2 होंगे, P में 6 होंगे, D में 10 होंगे and so on. Okay, class n equal to 4. Fourth shell has S subshell, P subshell, D subshell and F F subshell. Plus S subshell has capacity of 2 electrons, P has capacity of 6 electrons maximum, D has capacity of 10 electrons, F has capacity of 14 electrons. So total electrons in 4 shell will be 32. 32.
maximum 32, right? Same way we can go in fifth shell. The fifth shell has S, P, D, F and G. G. तो class out of which G हम लोग यूज नहीं करते, बराबर ना? G Yes, sir. because periodic में सिर्फ 118 एलिमेंट है, 118, तो we don't require G. हम लोग G तक पहुंच ही नहीं पाते because we don't have so many electrons in any item. Okay. Okay, class shell consists of subshell. Subshell consists of, सबशेल में क्या होता है? Orbital. Orbital. Shell consists of subshell. Subshell consists of Orbital. One orbit. ऑर्बिटल, राइट? सबशेल में क्या होता है? ऑर्बिटल होता है. तो क्लास हम लोग जाते हैं, चलो बात करते हैं स्टार्टिंग से. फर्स्ट शेल, n equal to 1 मतलब कौन सा शेल? First shell. फर्स्ट शेल. एवरीवन नो फर्स्ट शेल has only one subshell. Which subshell? S subshell. S subshell. S subshell has only one orbital. Which orbital? One Yes, orbital. orbit. S orbital, right? तो क्लास S orbital में कितने इलेक्ट्रॉन होता है? 2 Two electron. electrons. क्या व्हाट इज शेप ऑफ S orbital? Tennis ball. स्फेरिकल, राइट? क्या शेप है S orbital का? Spherical. स्फेरिकल. मैंने आपको क्या एक्सप्लेन किया था? ओके, हमारे पास क्या है बोलो? कहीं पे भी रह सकते हैं. हाँ, आपको एग्जांपल क्या जाता है? हमारे पास टेनिस बॉल है, राइट? Yes. Yes. टेनिस बॉल का शेप क्या होता है? स्फेरिकल. Spherical. ओके, तो स्फेरिकल शेप हमारे पास टेनिस बॉल है. ये टेनिस बॉल है, राइट? क्लास ये सर्कल नहीं है, स्फीयर है. क्लास आई होप यू अंडरस्टैंड स्फीयर एंड सर्कल में डिफरेंस. Yes. स्फेरिकल क्या होता है? 3 डायमेंशन होता है. क्लास हमने क्या किया? उस टेनिस बॉल के सेंटर में क्या रखा? न्यूक्लियस. Nucleus. दैट टेनिस बॉल इज न्यूक्लियस. ओके, अंदर का पूरा पार्ट हॉलो है, खाली अंदर का पार्ट. Yes. So class, that hollow part consists of how many electron maximum? Two. 2. Electron. तो 2 इलेक्ट्रॉन्स जो मैंने पूरा जो येलो कलर से शेड कर रहा हूँ, वो पूरा वॉल्यूम उस 2 इलेक्ट्रॉन के लिए एप्लीकेबल अवेलेबल है, राइट? द इलेक्ट्रॉन कैन बी एनीवेयर इन दैट येलो कलर वॉल्यूम. प्लस आई डोंट से येलो कलर स्पेस, आई से वॉल्यूम. वॉल्यूम क्यों? बिकॉज हम लोग क्या बात कर रहे हैं? 3 डायमेंशन, राइट? Yes. तो 2 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट एनीवेयर. ओके, क्या रिक्वायरमेंट है? दे कैन नॉट गो आउटसाइड द Boundary. and they cannot touch the Nucleus. तो क्लास जो हम लोग शेड कर रहे हैं एरिया, सॉरी जो वॉल्यूम, रियली सॉरी, दैट वॉल्यूम हैज शेप व्हाट? Spherical. दैट स्फेरिकली शेप रीजन where 2 electrons can be found, right? Maximum probability. Plus probability का मतलब क्या होता है हिंदी में, like इंग्लिश में? What is probability means? Chances. Chance, right? Very good. So there is maximum probability of finding electron. So the maximum probability of finding electron is in this spherical region. How many electrons? 2 electrons. 2 electrons. So that region, 3-dimensional region, where there is a maximum probability of finding 2 electrons. So such region is called as the S orbital. S orbital. क्या बोलते हैं उसको? S orbital. S orbital. Plus first shell में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? First shell has only 2 electrons. 2 electrons, right? Maximum electron in first shell are 2. The 2 electrons are present in S subshell. मतलब वो कहाँ पे प्रेजेंट है? S orbital में, right? Orbital. Yes, sir. ठीक है, तो 2 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन S orbital. यहाँ तक ठीक है? Yes. ओके, क्लास हम आते हैं सेकंड शेल में. क्लास सेकंड शेल में कितने सबशेल होते हैं? 2 subshells. 2 subshells. Okay, what is the maximum electron in second shell? 8. 18. 8 electrons. So second shell has S subshell. Okay, which consists only one orbital. Which orbital? S S orbital. orbital, right? Only S subshell, and S subshell contains only one orbital, that is S orbital. So second shell has S subshell, which can hold which has only one orbital. That orbital is called as what? S orbital, right? Yes, sir. Well, everyone knows what is shape of S orbital? Spherical, right? Yes. Okay. तो क्लास अभी हम लोग देखते हैं, ये यहाँ पे हम लोग S ऑर्बिटल ड्रॉ कर रहे हैं. कौन सा S ऑर्बिटल? सेकंड शेल का S ऑर्बिटल. ओके, लास्ट लेक्चर डिस्कस किया था. क्लास तो पूछा था, ये जो देखो सेंटर में न्यूक्लियस है, सबको सेंटर में न्यूक्लियस दिख रहा है? Yes. तो क्लास ये जो कलर कर रहा हूँ मैं यहाँ पे, सॉरी यहाँ पे जो मैं कलर कर रहा हूँ, ओके, वो एक स्फीयर है.
क्लास क्या बोला मैंने इसको, वो एक स्फीयर है, राइट? Yes. हाँ, तो क्लास फॉर एग्जांपल इमेजिन फुटबॉल ऑफ रेडियस, से फॉर एग्जांपल रेडियस 10 एंगस्ट्रॉम, से फॉर एग्जांपल कितना रेडियस है उसका, 10 एंगस्ट्रॉम। प्लस इमेजिन वन मोर फुटबॉल ऑफ रेडियस 15 एंगस्ट्रॉम, और एक फुटबॉल इमेजिन करो, दिख रहा है दूसरा वाला? Yes. प्लस दोनों का सेंटर कौन है बोलो? न्यूक्लियस। Nucleus. दोनों का सेंटर न्यूक्लियस, राइट? तो दूसरा दूसरा जो फुटबॉल है उसका रेडियस कितना है? 15 एंगस्ट्रॉम। 15 angstrom. प्लस सॉरी एक मिनट में, हाँ, तो प्लस दोनों का तो 10 एंगस्ट्रॉम और 50 एंगस्ट्रॉम के बीच में जो रीजन होगा, क्या क्लास, क्या शेप है उसका रीजन का? Spherical. स्फेरिकल। कहाँ पे, कौन से कलर से उसको शेड किया मैंने, बताओ मुझे? ग्रीन। ग्रीन, पता ना? ग्रीन कलर का जो बीच में जो रीजन है स्फेरिकल शेप, ये जो आपको रीजन दिख रहा है ग्रीन कलर का, तो क्लास दैट रीजन इज व्हाट? एस ऑर्बिटल। क्या है वो? एस ऑर्बिटल। एस ऑर्बिटल। तो क्लास कौन से शेल का एस ऑर्बिटल है वो? सेकंड सेकंड First. से सेकंड शेल का, सेकंड शेल का ना बच्चे लोग, बता रहे? हाँ सर. यस। कौन सा शेल का एस ऑर्बिटल है वो? सेकंड शेल का। तो क्लास का नाम क्या होगा फिर? एस ऑर्बिटल। कौन सा एस ऑर्बिटल? 1s या 2s? 2. 2s। 2s। नाम होगा 2s ऑर्बिटल, राइट? क्लियर है सब लोग को? द नेम विल बी 2s Yes. ऑर्बिटल। तो क्लास ये 2s हो गया। तो क्लास 2s में कितने इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम? 18. नहीं, एस ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं मैक्सिमम? एस ऑर्बिटल कैन कंसिस्ट ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन्स ना? एस ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन। तो क्लास ये 2 इलेक्ट्रॉन दिख रहा है Yes. आपको? तो दिस 2 इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट एनीवेयर। तो हम लोग दिखा रहे हैं यहाँ पे सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन है, वो किधर भी घूम सकते हैं इस रीजन में। तो 2s ऑर्बिटल द शेप इज अगेन spherical, right? Which can consist of 2 electron. तो क्लास सेकंड शेल हैज सब, उसका नाम, उस सबशेल का नाम क्या होगा? 2s सबशेल। क्या नाम होगा सबशेल का? 2s. Name of the subshell will be 2s subshell, right? And at 2s Yeah. subshell there is only one orbital. What is the name of that orbital? S orbital. 2s orbital. Plus 2 stand for what? It is orbital from which shell? Second shell. सेकंड सेल। And shell. That can have maximum. 2 इलेक्ट्रॉन। Electron. तो आपने जो ग्रीन कलर से शेड किया है वॉल्यूम, उस वॉल्यूम में 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं किधर भी, राइट? Nobody knows where. So that Yeah. name, that region is called as what? 2s orbital. Class, now next thing, very important, very important. Those people who are preparing for competitive exams, ये बीच में आपको दिखा व्हाइट कलर का गैप? Yeah. यस सर। प्लस वहां पे क्या है? वहां पे कुछ भी नहीं, राइट? यहाँ पे इलेक्ट्रॉन नहीं हो सकते। प्लस माय क्वेश्चन इज व्हाट इज शेप ऑफ दैट रीजन? व्हाइट कलर का रीजन का शेप क्या है? Spherical. स्फेरिकल। So class, between 1s orbital and 2s orbital, can you see between 1s orbital and 2s Yes. orbital, बीच में थोड़ा गैप है व्हाइट कलर का जहाँ पे इलेक्ट्रॉन नहीं होता। No. तो क्लास दैट रीजन इज कॉल्ड एज द स्फेरिकल नोड। क्या बोलते हैं, बोलो एक बार? Spherical node. Spherical मेडिकल node. नोड। प्लस नोड क्या होता है? नोड ऐसा जगह होता है जहाँ पे इलेक्ट्रॉन फाइंड करने का प्रोबेबिलिटी कितना होता है? जहाँ पे इलेक्ट्रॉन फाइंड करने का प्रोबेबिलिटी कितना होता है? चांस कितना होता है? 0. 0। प्लस मैंने बोला वहाँ पे इलेक्ट्रॉन होता नहीं, मतलब इलेक्ट्रॉन फाइंड करने का प्रोबेबिलिटी कितना होगा वहाँ पे? 0। 0. प्लस व्हाट दैट रीजन इज कॉल्ड एज Spherical node. spherical. Very important. Okay, and how to calculate spherical node हम लोग देखेंगे, सीखेंगे, उसके फॉर्मूले है, तो इसको हम लोग spherical node, right? So spherical node is a 3-dimensional region between orbitals where probability of finding electron is 0, जहाँ पे इलेक्ट्रॉन होने का चांसेस 0 होता है। Any doubt here spherical node में? No. Okay, good. तो बस हाँ, तो अपने सेकेंड शेल में 8 इलेक्ट्रॉन है, उसमें से कितने इलेक्ट्रॉन की बात होगी अपनी? 2 की, राइट? So. 8 में से 2 इलेक्ट्रॉन कहाँ पे प्रेजेंट है? s ऑर्बिटल में, 2s S ऑर्बिटल में। 2s ऑर्बिटल, 2s मतलब सेकेंड शेल के s ऑर्बिटल में, बराबर ना? Yes. Yes sir. अभी कितने इलेक्ट्रॉन की बात करने बाकी है? 6. 6 electrons. Let's now see how the 6 electrons are. So let us understand ये 6 इलेक्ट्रॉन कहाँ पे प्रेजेंट है, कौन से ऑर्बिटल में प्रेजेंट है? हाँ, तो क्लास इफ आई गिव यू अ बलून, अगर हम लोग बलून लेते हैं, ठीक है, क्या लेते हैं? बलून। प्लस यहाँ पे मेरे कोऑर्डिनेट एक्सिस, क्लास व्हाट डॉटेड लाइन इंडिकेट्स? यहाँ पे डॉटेड लाइन का मतलब क्या होता है? एनीबॉडी? एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, और ये जेड एक्सिस है। वाई डॉटेड? डॉटेड क्यों है जेड एक्सिस? क्योंकि वो 3 डायमेंशन को रिप्रेजेंट कर रहा डायमेंशन है, क्यों? अपने उस पेपर पे नहीं, वो क्या है, उसका आधा पार्ट क्या है? इस
स्क्रीन के आगे, आधा पार्ट स्क्रीन के पीछे, राइट? तो इट इज कन्वेंशनल वे टू शो द 3 डायमेंशन. दिस इज परपेंडिकुलर टू दिस प्लेन. तो डॉटेड लाइन ऑलवेज इंडिकेट्स इन फिजिक्स क्या? परपेंडिकुलर टू द प्लेन. आर यू क्लियर क्लास? यस और नो? Yes, sir. प्लस एक्स एक्सिस इस पेपर के प्लेन में ही, मतलब स्क्रीन के ऊपर जो पेपर दिख रहा है प्लान वाला, उसी प्लेन में. वाई एक्सिस भी उसी प्लेन में, राइट? पर जेड एक्सिस उस प्लेन में नहीं. उस वो जेड एक्सिस क्या है? उस प्लेन को क्या है? परपेंडिकुलर है. तो जेड एक्सिस का आधा पार्ट स्क्रीन के आगे है, आधा पार्ट स्क्रीन के पीछे है. आर यू क्लियर? एंड ऑल थ्री आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर. एंगल बिटवीन एक्स वाई वाई जेड कितना होगा? 90 डिग्री. ओके, तो क्लास हमें देखते हैं पी सबशेल में. पी सबशेल में कितने ऑर्बिटल होता है बोला आपको मैंने? तो पी सबशेल कंसिस्ट ऑफ 3 ऑर्बिटल. कितने ऑर्बिटल होता है? 3 ऑर्बिटल. और देखते हो कैसे होता है. तो क्लास इफ आई टेक अ बलून एंड फिल विद द एयर, मैं बलून में हवा भरता हूँ बलून में. तो क्लास दैट शेप इज बलून में जब हम हवा भरते हैं तो क्लास वो शेप क्या होता है? व्हाट इज दैट शेप? 3 डायमेंशनल, 2 डायमेंशनल? 3 dimensional. 3 डायमेंशनल, राइट? 2 dimension. बलून में हवा भरेंगे तो 3 डायमेंशनल, मतलब वो, आई होप यू अंडरस्टैंड. 3 डायमेंशनल, 2 डायमेंशनल. जो पेपर के ऊपर ड्रॉ किया जाता है वो 2 डायमेंशनल. क्लास बलून कैसे होता है? 3 डायमेंशनल ना. Yes, sir. बलून स्फीयर क्या होता है? स्फेरिकल शेप क्या होता है? 3 डायमेंशनल. वैसे बलून भी 3 dimension. बलून का शेप भी गया 3 डायमेंशनल. तो एक बलून लिया, हवा भरा हम लोगों ने, राइट? एक बलून और लिया, यहाँ पे कार्ड बांध दिया. एक बलून और लिया, उसमें भी हवा भर दिया हम लोगों ने. तो क्लास ये जो बलून है, 2 बलून हमारे पास है, ये पूरा शेप क्या है? 2 डायमेंशनल और 3 डायमेंशनल. दोनों बलून हवा भरा हुआ है, दोनों को ज्वाइन करके ऐसा एक शेप बना दिया हम लोगों ने. इट इज 2 डायमेंशनल और 3 डायमेंशनल. माय क्वेश्चन इज, ये 2 डायमेंशनल शेप या 3 डायमेंशनल शेप है? 3 dimension. 3 डायमेंशनल, राइट? हाँ. तो क्लास इस शेप के आधे पार्ट 3 को, dimension. इस पार्ट को बोलते हैं हम लोग बेल. ये पार्ट को भी क्या बोलते हैं हम लोग? बेल. और दोनों पार्ट मिला के जो पूरा बनता है उसको बोलते हैं हम लोग डम्बल. बोलो एक बार, क्या बोलते हैं इसको? डम्बल. तो क्लास अगर हमारे पास डम्बल शेप और क्लास, यहाँ पे सेंटर में क्या होता है? हमेशा सेंटर में होता है न्यूक्लियस. एक्स वाई जेड एक्सिस के. क्लास ऊपर भी देखो, सेंटर में क्या था? एक्स वाई जेड एक्सिस के सेंटर में क्या था? वही सेम न्यूक्लियस है. हम लोग उसी न्यूक्लियस के Nucleus. सेंटर में न्यूक्लियस है. तो क्लास एक्स वाई जेड एक्सिस है, सेंटर में न्यूक्लियस है, राइट? तो क्लास इफ यू ड्रॉ डम्बल ऑन विच एक्सिस? X एक्सिस. तो क्लास इज दिस 3 डायमेंशनल रीजन? ये 3 डायमेंशनल रीजन है. Yes. ओके. तो बस इस रीजन में इलेक्ट्रॉन कहाँ पे हो सकते हैं? जितना भी येलो पास, येलो से मैं कलर कर रहा हूँ वो वॉल्यूम, 2 इलेक्ट्रॉन कहाँ पे हो सकते हैं? किधर भी हो सकते हैं. कहीं भी. कहीं भी. इस येलो कलर का जो मैंने वॉल्यूम ड्रॉ किया है उस वॉल्यूम में इलेक्ट्रॉन किधर भी हो सकते हैं. एनीवेयर इन दैट रीजन. हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स? मैक्सिमम 2. 2 electrons. तो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे हो सकते हैं, तो किधर भी हो सकते हैं, मतलब इलेक्ट्रॉन की मर्जी वो कहाँ पे भी हो सकता है, राइट? तो क्लास दिस रीजन, इसका शेप क्या है? डम्बल. Number. जो कौन से एक्सिस पे है? X. X axis. X axis. We call that orbital as what? px orbital. क्या होता है इसको? Px. And which PX can hold orbital. maximum? 2 2 electron. electron. ये px orbital का शेप सबको समझा? Yes. Yes. Now what is px Yes, orbital? What is px orbital? It is dumbbell shaped region on which axis? X. X. X axis. Where we can find maximum how many electrons? 2 electron. 2 2 electrons. electron. So that region is called as what? px orbital. ठीक है? बस कहाँ पे होगा? वो एक्सिस पे होगा, राइट? डम्बल शेप दूसरा. तो हमारे पास वापस ये कोऑर्डिनेट एक्सिस, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस. ठीक है? एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस. तो प्लस दूसरा पी ऑर्बिटल कहाँ पे होगा? वाई एक्सिस पे. तो प्लस डम्बल शेप रीजन ऑन विच एक्सिस? Y. Y axis. वाई एक्सिस. ठीक है? तो दिस इज डम्बल ऑन विच एक्सिस? वाई एक्सिस. तो बस जो रीजन में शेड कर रहा हूँ, ओके, तो ये पूरा रीजन येलो कलर का
ये पूरा वॉल्यूम या फिर ये पूरा वॉल्यूम, 2 इलेक्ट्रॉन कैन प्रेजेंट एनीवेयर, राइट, किधर भी हो सकते हैं इस वॉल्यूम में, प्लस इस शेप के रीजन में 2 इलेक्ट्रॉन किधर भी हो सकते हैं, उनको सिर्फ एक नहीं करना है, क्या नहीं करना, न्यूक्लियस को टच नहीं करना बस, बाउंड्री के बाहर नहीं जाना। आर यू क्लियर? Yes. Yes. Electrons are not supposed to touch the nucleus and not allowed to go outside the boundary of this dumbbell. तो क्लास यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन मैंने बोला? 2 इलेक्ट्रॉन, कैन बी एनीवेयर। Anybody will guess the name of orbital? इसका नाम क्या होना चाहिए? Py orbital. Py. Very good. The orbital is called as the py orbital. Py Which, orbital. very good. Which can have maximum? 2 electrons. Good. Okay. Class this one. हमारे पास 3 एक्सिस है, x एक्सिस, y एक्सिस एंड z एक्सिस। Axis. Class now the dumbbell shape region on which axis? Z axis. Z axis. तो ये रीजन है डम्बल शेप रीजन ऑन विच एक्सिस? Z एक्सिस। Z axis. इसमें कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं मैक्सिमम? 2. 2 electrons. कहाँ पे हो सकते हैं? Anywhere. Z axis. डम्बल शेप रीजन जो है Z एक्सिस के ऊपर, उस रीजन में किधर भी, बाउंड्री के अंदर किधर भी, राइट, एक्सेप्ट न्यूक्लियस। Yes. So that region where 2 electrons are present, we call this orbital as what? PZ orbital. PZ orbital is equal to 2 electrons. 2 electrons. आपने बोला p subshell has how many electrons? 6. 6 electrons, right? So out of 6, 2 electrons are present in px orbital, 2 are present in Py. k orbital, and 2 are present in PZ. PZ. तो टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? 6। कौन से सबशेल में? p सबशेल में। P Are you clear? subshell. Yes. This is very common question in your college exam. Draw shape of p orbital. So class आपको 3 डायग्राम ड्रॉ करना पड़ेगा। एक कौन सा? px axis on which x, or px orbital on x axis, py orbital on y axis, and pz orbital on z axis. Are you clear? सर इसमें न्यूक्लियस किधर है? क्या हुआ? इसमें न्यूक्लियस किधर? ये क्या न्यूक्लियस जो सेंटर में दिख रहा है आपको रेड कलर का? सर देखो यहाँ पे, कैन यू सी द न्यूक्लियस हियर? न्यूक्लियस यहाँ पे, प्लस न्यूक्लियस सबका सेम है, एक ही न्यूक्लियस है, यहाँ पे भी सब जगह पे न्यूक्लियस एक ही है, यहाँ पे और इवन यहाँ पे सेम न्यूक्लियस की बात कर रहे हैं। आर यू क्लियर? तो रीजन व्हेन आई से ऑर्बिटल, ऑर्बिटल रीजन अराउंड द, ऑर्बिटल रीजन अराउंड द न्यूक्लियस। न्यूक्लियस का अराउंड रीजन होता है, राइट? मैं दिखाऊंगा आपको, डोंट वरी, मैं इसका एक आपको वीडियो भी दिखाऊंगा आज ही। एनी डाउट हियर? यहाँ पे कुछ पूछना है आपको? नो सर। ओके। क्लास अब हम लोग थर्ड शेल में, n = 3। क्लास थर्ड शेल में कितने सबशेल होते हैं? 3. 3. n = 3. Third shell has 3 subshells. S subshell, which has how many orbitals? Only one. Which orbital? S orbital. S orbital. What is shape of S orbital? Spherical. Spherical. It can have maximum 2 2 electrons. मतलब हम लोग थर्ड शेल में जाते हैं, तो क्लास देखो अभी करने की जरूरत नहीं लगता है, फिर भी हम लोग करते हैं। थर्ड शेल में जाते हैं हम लोग, तो क्लास इफ आई गो इन थर्ड शेल, तो क्लास अभी ये और बड़े साइज का क्या होगा? स्फीयर होगा, राइट? पता ना? देखते हैं, आप मुझे हेल्प करोगे एक समझने में, और एक सॉरी एक मिनट, क्या हुआ इसको? Just a second. This is not living.
ओके, थोड़ा आराम से। तो क्लास ये स्फेरिकल रीजन है। तो क्लास हम लोग और स्फीयर लेंगे एक, बराबर है? क्लास क्वेश्चन इज, ये जो दो स्फीयर के बीच में गैप है उसका शेप क्या बताओ? Spherical. स्फेरिकल। ये जो शेप है स्फेरिकल है, राइट? तो क्लास ये स्फेरिकल शेप रीजन कौन से सब शेल में बच्चों बच्चों लोग? कौन से शेल में? ये कौन सा शेल है? थर्ड शेल की बात हो रही है ना? Yes. बताओ जो येलो कलर का स्फेरिकल रीजन है वो क्या है? फर्स्ट शेल का एस ऑर्बिटल, राइट? जो ग्रीन कलर का स्फेरिकल रीजन है वो क्या है? सेकंड से सेकंड शेल का एस Second. ऑर्बिटल है। अभी जो मैं जो कलर से ये कर रहा हूँ, ब्लू कलर शायद, ठीक है, स्काई ब्लू। इस कलर का जो रीजन है वो कौन सा शेल का है? थर्ड शी। तो इसका नाम Third ऑर्बिटल 3s ऑर्बिटल। 3s ना? 3s क्यों? क्योंकि वो थर्ड शेल का ऐसे बराबर है। व्हाट इज द नेम? 3s ऑर्बिटल। आर यू क्लियर? यस और नो? बस बोलिए, नहीं समझा तो नहीं बोलो, बिंदास। समझ रहे? ओके, तो क्लास ये 3s ऑर्बिटल है। क्लास माय क्वेश्चन इज 2s एंड 3s ऑर्बिटल के बीच में कुछ गैप है? Yes, sir. वहाँ पे इलेक्ट्रॉन होते हैं नहीं होते हैं? नहीं क्लास क्या बोलते हैं इस गैप को हम लोग? हाँ बोलिए ना। Spherical शेल node. के बीच में स्पेस क्यों होता है पर? हाँ, क्यों होता है ऐसा, उसका कुछ आंसर नहीं। क्यों होता है, ये नेचर ने बनाया सब ऑर्बिटल, राइट? जो है वो है। हाँ, अगर क्यों होता है मतलब कैसे होता है उसके पीछे रीजन है, उसके पीछे इक्वेशंस होते हैं, उसको बोलते हैं श्रोडिंगर इक्वेशन। वो आईआईटी एडवांस में आपको आएगा। श्रोडिंगर इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए सुपर कंप्यूटर्स लगते हैं, मतलब पूरे आगे के। तो इतना डिटेल में हम लोग जाएंगे तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा फॉर टाइम बिंग। अभी रीजन क्यों होता है, देखो अभी आइटम होता क्यों है, तो कैन यू एक्सप्लेन नेचर ही क्यों है? कुछ चीजों का हमारे पास आंसर नहीं है। ओके, तो क्लास ये रीजन है बीच में। हाँ क्लास, क्यों होता है, वो होने से क्या होता है हम बता सकते हैं। कुछ एनर्जी का कंसर्न है, तो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड पार्ट है, वो देखेंगे हम लोग अगर आपको चाहिए तो। पर एक आपके जेडब्ल्यू एडवांस तक वो पार्ट बिल्कुल रिक्वायर्ड नहीं है। तो क्लास यहाँ पे जो मैंने शेयर किया रीजन बीच में, देखो ये व्हाइट कलर का रीजन है। क्लास क्या बोलेंगे इसको हम लोग? Spherical node. स्फेरिकल नोड। और क्लास ये कौन सा ऑर्बिटल है? 3s। कितने इलेक्ट्रॉन इसमें मैक्सिमम? 2. क्लास 2। क्लास ये इतने सारे इलेक्ट्रॉन क्यों दिखा रहा हूँ? इलेक्ट्रॉन इतने सारे नहीं, हम लोग क्या दिखा रहे हैं? इलेक्ट्रॉन का सिर्फ प्रोबेबिलिटी, कहाँ पे इलेक्ट्रॉन रह सकता है, राइट? तो इलेक्ट्रॉन कैन प्रेजेंट एनीवेयर इन दैट रीजन, दैट स्फेरिकल शेप रीजन। इलेक्ट्रॉन कैन प्रेजेंट एनीवेयर, राइट? So that Yes, spherical sir. shape region electrons are present anywhere. So that region is called as which orbital? 3s orbital. 3s orbital. 3s orbital, right? We call the region as what? 3s orbital. Okay. तो क्लास 3s ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं मैक्सिमम? 2. 2 इलेक्ट्रॉन। तो s ऑर्बिटल, और इसका नाम भी चाहिए तो आप लिख सकते हैं। ये थर्ड शेल का n = 3 है, तो इसका नाम होगा 3s orbital. Can have maximum 2 electrons. How many electrons are present in third shell total? 18 electrons, right? Yes. तो 18 में से 2 किस में चले गए? 3s ऑर्बिटल में। हाँ, प्लस अभी बचे हुए 6 कहाँ पे जाएंगे? एनी गेसेस? सर p p section सेक्शन प्लस p section कौन सा ऑर्बिटल होता है? एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन, py ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन, pz ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन। प्लस टोटल कितने इलेक्ट्रॉन चले गए? 6 इलेक्ट्रॉन। तो प्लस s में 2, p में 6, टोटल 8 हो गए। अभी कितने इलेक्ट्रॉन बाकी आपके पास बोलो? 10. 10। तो 10 electrons are present. Anybody? 10 electrons are present with subshell. d सबसे subshell. So remaining 10 electrons are present in d subshell. So remaining 10 electrons are present in d subshell. So let us see d subshell में ऑर्बिटल कौन से होते हैं। तो d subshell has total 5 orbitals. कितने ऑर्बिटल्स होते हैं? 5. 5 ऑर्बिटल्स। देखते हैं कैसे होते हैं 5 ऑर्बिटल्स। तो क्लास ये जो डंबल दिख रहा है ये क्या है? ये इससे बड़े शेप का साइज का होगा क्या? सेकेंड शेल का px ऑर्बिटल, राइट? इससे बड़ा क्या हो गया?
पी ऑर्बिटल, इससे बड़ा क्या होगा? प्लस ये जो ड्रॉ किया मैंने वो किसके लिए किए थे? सेकंड शेल के, राइट? थर्ड शेल के ऑर्बिटल इससे भी बड़े होंगे, राइट? आर यू क्लियर? Yeah. हाँ, शेप तो वही होगा, px का शेप डंबल, py का शेप डंबल, pz का शेप वापस डंबल। सिर्फ बड़ा डिफरेंस क्या होगा? जब आपके p सब शेल होंगे, जो तीन ऑर्बिटल होंगे px, py एंड pz, वो सेकंड शेल के p ऑर्बिटल से क्या होंगे? थोड़े से साइज में बड़े होंगे, ठीक है? यानी ये आपको नहीं समझा मैंने जो बोला वो? प्लस सेकंड शेल में p ऑर्बिटल, p सब शेल, थर्ड शेल में p सब, राइट? तो p सब शेल में कितने ऑर्बिटल है? 3, px, py एंड pz। अब बात करें d सब शेल की, तो क्लास एक क्वेश्चन है आपके लिए, सिंपल क्वेश्चन है, ध्यान दो। प्लस इस शेप को हम लोग क्या बोलते हैं? डंबल से बेल। Bell. क्लास ये क्या बन गया? और एक बेल, राइट? पूरा मिला के क्या बन गया? Dumbbell. वेरी गुड, पूरा मिला के डंबल बन गया। प्लस अभी हम लोग और एक डंबल ड्रॉ करें, तो क्लास दिस शेप इज कॉल्ड एज द डबल डंबल। क्या शेप को हम लोग? डबल डंबल। तो क्लास मैं बहुत कॉमन लैंग्वेज में बात करूंगा, तो हमारे कितने बलून्स है? 4 जॉइन कर क्या है और बीच में क्या बोलो? Nucleus. ओके, तो क्लास लेट अस सी डबल डंबल शेप कैसे, कहाँ से आता है। तो क्लास हमारे पास एक्सिस है, एक्स मैं पहले लेता हूँ सिर्फ एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। क्लास ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस। मैं फिलहाल यहाँ पे जेड एक्सिस ड्रॉ नहीं करता। तो क्लास 4 बलून में ड्रॉ करता हूँ। ओके क्लास ये पहला ड्रॉ किया, क्लास कहाँ पे ड्रॉ किया बताओ मुझे? एक्स एंड वाई एक्सिस के ऊपर या उनके बीच में? बीच में। बीच में। क्लास कितना एंगल है बीच में? 45 डिग्री का एंगल्स में, राइट? एक ड्रॉ कर रहा हूँ बलून, क्या एवरीवन? प्लस एक बलून और ड्रॉ किया यहाँ पे, एक बलून यहाँ पे ड्रॉ किया, और एक बलून यहाँ पे ड्रॉ किया। तो क्लास ये टोटल 4 बलून मिला के कौन सा शेप क्रिएट हुआ? डबल डंबल शेप। तो क्लास ये जो पूरा रीजन इलेक्ट्रॉन कहाँ पे हो सकता है, राइट? इस रीजन में जहाँ पे मैं ड्रॉ कर रहा हूँ। तो माय क्वेश्चन इज, ये 4 बलून में इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, क्लास कितने मैक्सिमम आप बताओ? मैक्सिमम कितने? 4। हाँ क्लास बिल्कुल नहीं, मैक्सिमम कितने? 2। 2. मैं आपको रीजन बताता हूँ क्यों। क्लास अगर मेरे घर में मैं, मेरी वाइफ और मेरी डॉटर रहती है, राइट? या फिर मैं और मेरी वाइफ रहती है, और हमारा घर क्या है? 2 BHK, तो हम दोनों ही लोग हैं ना। समझो मेरा प्रमोशन हो गया, पॉसिबल नहीं है, पर समझो मैंने 4 BHK लिया, तो क्लास इस घर में कितने लोग रहेंगे? दोनों ही लगेंगे ना, क्यों? दूसरे मतलब घर तो मेरा है, बराबर है? तो क्लास यहाँ पे कैसा है? अभी इलेक्ट्रॉन के लिए रीजन ज्यादा है, पर इलेक्ट्रॉन रहेंगे कितने? सिर्फ 2 ही रहेंगे। कहाँ पे रहेंगे? उनकी मर्जी। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस। समझा आपको क्या बोल रहा हूँ मैं? यस। तो 2 इलेक्ट्रॉन अभी उनके लिए क्या है, ज्यादा रीजन अवेलेबल है, पर इलेक्ट्रॉन रहेंगे 2 ही। तो क्लास ये जो ऑर्बिटल डबल डंबल है कहाँ पे प्रेजेंट है? एक्स एंड वाई एक्सिस एक्सिस के बीच में। तो क्लास इसको नाम देते हैं हम लोग डी एक्स वाई ऑर्बिटल। क्या नाम देते हैं इसको हम लोग? डी एक्स वाई। XY. तो क्लास डी एक्स वाई मतलब डबल डंबल शेप रीजन बिटवीन x and Y axis. where we can find maximum how many electrons? 2 electrons. 2 electron. तो क्लास dx ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 2 होते हैं। ये समझा आपको dx ऑर्बिटल? यस। What is dx orbital? It is a double shape region between X and Y axis. axis, वाई एक्सिस where we can find maximum. 2 इलेक्ट्रॉन। So we call that region as what? D xy orbital. Any doubt? No, sir. Okay. No, क्लास sir. मुझे तो हमारा 3 एक्सिस होते हैं, कौन से? x एक्सिस, y एक्सिस एंड z एक्सिस। तो क्लास हम लोग Z axis. between x y एक्सिस, between y z एक्सिस, और तीसरा between x z एक्सिस, राइट? तो क्लास अभी मैं देखता हूँ डबल डंबल, अभी एक्स एंड वाई के बीच में देखा हम लोगों ने, राइट? तो इसका नाम क्या था? dxy, राइट? DXY. नाम dxy था। अगर मैं अभी डबल डंबल शेप रीजन देखता हूँ,
बिटवीन y एंड z एक्सिस, कहाँ पे बिटवीन y एंड z एक्सिस। क्लास आप बोलोगे, देखो केयरफुली सुना, आप बोलोगे सर ये तो पहले x एक्सिस था, अब इसको अपने y कैसे लिखा है? एनीबॉडी नो रीजन इसके पीछे का? इसका भी y कैसे लिखा मैंने? घुमा दिया। हाँ सर इधर भी 2 ही इलेक्ट्रॉन है ना, वो नहीं, इसीलिए। अभी एक्सिस पहले x लिखा था राइट, अभी इसको मैंने y लिखा है। आइडेंटिकल है। घुमा दिया, रोटेट की। वेरी गुड, रोटेट रोटेट किया आपने, सिखा रहेगा फिजिक्स में एक्सिस को हम लोग क्या कर सकते हैं? रोटेट। तो क्लास मुझे बताओ, अगर ये x एक्सिस है और ये y एक्सिस है, इसको मैं 90 डिग्री से रोटेट करता हूँ राइट, 90 डिग्री से रोटेट करता हूँ मैं इसको, या फिर उसको उल्टा करता हूँ। तो क्लास ये x एक्सिस था और ये y था, तो क्लास रोटेट करने के बाद भी क्या होगा? x ही रहेगा, इसको फ्लिप करता है, x ही रहेगा और y ही रहेगा राइट, उनका नाम चेंज नहीं होगा। आर यू क्लियर? तो क्लास हमने यहाँ पे Yes. क्या किया है, सिर्फ रोटेट करके दिखा एक्सिस को, थोड़ा 3 डायमेंशन रोटेट किया। तो क्लास ये y एंड z के बीच में है, तो डबल शेप रीजन बिटवीन व्हाट, y एंड z एक्सिस, उसका नाम क्या है? d, इसका नाम क्या है? d ZY। y z राइट, क्या नाम है? d y z, z y भी चलेगा, d y z बोलते हैं मोस्टली। क्या क्लास हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम? 2. 2 इलेक्ट्रॉन राइट। ओके नेक्स्ट वन, अब गेस करो अभी, डबल शेप रीजन बिटवीन Z and X. डबल शेप रीजन बिटवीन z एंड which axis? x एक्सिस राइट, X. ये आपका z एक्सिस है और x एक्सिस है, तो डबल शेप रीजन बिटवीन z एंड x एक्सिस where you can have maximum 2 इलेक्ट्रॉन, नाम क्या होगा उसका? d xz, क्या नाम होगा? d XZ। xz, 3 ऑर्बिटल हो गए राइट। तो इसमें 2 इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम, xy में 2 इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम, yz में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन और xz में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन। तो क्लास डी सबशेल में कितने ऑर्बिटल होता है? तो डी सबशेल 5 ऑर्बिटल, उसमें से एक हो गया dxy राइट, इसमें मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। दूसरा हो गया d YZ, जिसमें मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। तीसरा d DXZ, मैक्सिमम 2 2 इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन्स राइट। प्लस बाद में सॉरी प्लस अभी एक्स एंड वाई एक्सिस है, एक्स एक्सिस एंड प्लस, डोंट वरी हम लोग उसका एक वीडियो देखेंगे, बहुत अच्छे से समझेगा ये एक्स एक्सिस वाई एक्सिस। प्लस अभी मैं 4 बलून ड्रॉ कर रहा हूँ। प्लस क्वेश्चन है, ये बलून हमने एक्सिस के बीच में ड्रॉ किया, एक्सिस के ऊपर ड्रॉ किया, ऑन द एक्सिस ड्रॉ किया। ये 4 बलून ड्रॉ किया है वो एक्सिस के बीच में ड्रॉ किया है या अलोंग द एक्सिस ड्रॉ किया है? Along the axis। अलोंग द, राइट। हम लोग एग्जैक्टली एक्स एंड वाई एक्सिस के ऊपर 4 बलून ड्रॉ किया है, एक बलून पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे, एक नेगेटिव एक्स एक्सिस पे, एक पॉजिटिव वाई पे और एक नेगेटिव वाई पे। क्लास बराबर है? क्लास ऊपर जो 3 थे वो कहाँ पे थे बोलो? बिटवीन थे राइट, Which yes sir। बिटवीन। तो क्लास 3 ऑर्बिटल एक्स वाई वाई जेड एंड एक्स जेड, दे आर बिटवीन द एक्सिस। कैसे है? बिटवीन द एक्सिस, The- बिटवीन द एक्सिस। ओके ये तीनों dxy dy एंड dxz राइट। तो हम लोग हमने जो ड्रॉ किया है वो कहाँ पे? अलोंग द एक्सिस। कहाँ पे? अलोंग द एक्सिस, एक्सिस के ऊपर है। तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं मैक्सिमम बोलो? 2 तो इसमें मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, तो ओनली 2 इलेक्ट्रॉन्स आर पॉसिबल हियर। एंड क्लास नेम ऑफ दिस ऑर्बिटल इज d, इसको कैसे प्रोनाउंस करते हैं? x2 y2। क्लास बहुत लोग उसको x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर बोलते हैं, बट दैट इज रॉन्ग प्रोनाउंसिएशन। ठीक है, आपको जो बोलना है बोलो, लिखते तो बोला लिखो। इसको बोलते क्या है एक्चुअली साइंटिफिकली? dx2 y2। I2। ओके dx2 डैश y2। अब x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर बोलो तो भी चलेगा, क्योंकि याद रखने के लिए वो ज्यादा इजी है, पर एक्चुअली प्रैक्टिकली उसका नाम क्या था? dx2 y2। क्लास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं इसमें मैक्सिमम? 2 electron। 2 इलेक्ट्रॉन, Electron। 2 electrons right, 2 electrons। and class that dx2 y2 which are maximum 2 electrons is कहाँ पे? along the axis। कहाँ पे? Along the axis। एक्सिस के ऊपर होता है राइट।
क्लास एक और बचा बरा ना क्लास क्यों एक बचा यार टोटल बोलो आपके पास कितने हो गए dxy में 2 इलेक्ट्रॉन dyz में 2 इलेक्ट्रॉन dxz में 2 इलेक्ट्रॉन dx2 y2 में 2 इलेक्ट्रॉन टोटल 8 इलेक्ट्रॉन हो गए ऑर्बिटल भी 4 हो गए अपने पास कितने ऑर्बिटल होते हैं 5 होते हैं बराबर ना तो लास्ट वाला ऑर्बिटल डी ऑर्बिटल कैसा होता है क्लास वो थोड़ा सा अलग है तो क्लास ये जेड एक्सिस है कौन सा एक्सिस है ये जेड एक्सिस है इसका शेप डबल डंबल नहीं होता ये जेड एक्सिस है क्लास सेंटर में न्यूक्लियस है सेंटर में न्यूक्लियस है और क्लास ये हमने ड्रॉ किया ठीक है तो क्लास ये आपको कौन सा ऑर्बिटल लग रहा है नॉर्मल ऐसे कौन सा ऑर्बिटल होता है इस शेप का डंबल शेप ये पीजेड ऑर्बिटल लग रहा है ना आपको नहीं पीजेड ऑर्बिटल हाँ सर लग रहा है एक पीजेड ऑर्बिटल देखते हो ऊपर हमने ड्रॉ किया देखो पीजेड ऑर्बिटल देखो इधर होगा पीजेड हाँ ये देखो पीजेड डंबल शेप है ना उसका शेप डंबल शेप है तो ये भी डंबल शेप है जेड एक्सिस पे ये देखो जेड एक्सिस पे डंबल शेप तो यहाँ पे भी क्या है जेड एक्सिस पे क्या है डंबल शेप है प्लस यहाँ पे एक चीज एक्स्ट्रा होती है इस डंबल के अराउंड एक 3 डायमेंशनल रिंग होता है आपने सबने मेदुवाड़ा देखा राइट मेदुवाड़ा Yes. यस सर मेदुवाड़ा इज 2 डायमेंशनल 3 डायमेंशनल में चलो मेदुवाड़ा इज 2 डायमेंशनल 3 डायमेंशनल 3 डायमेंशनल तो क्लास ऐसा ही रिंग होता है तो क्लास इलेक्ट्रॉन कहाँ पे हो सकते हैं या तो उस डंबल में या तो इस मेदुवाड़े में राइट इलेक्ट्रॉन हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स एक कंप्लीटली अलग शेप है राइट 2 इलेक्ट्रॉन so 2 electron can present anywhere का electron can present either in this dumbbell shape region बराबर है or in this ring बराबर है so class this region where you can find 2 electron either in this dumbbell or this ring this region this orbital is called as d z2 plus बहुत लोग उसको z square बोलते हैं फर्क नहीं पड़ेगा पर रियल नेम का इसका डिजिट z square how many electrons maximum 2 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन मतलब आपके पांचों डी ऑर्बिटल हो गए एक बार सब लोग साथ में देखते हैं सबको दिख रहा है सबको पांचों डी ऑर्बिटल्स dxy between x and y axis dyz between x and z axis dxz between x and z axis dx2 y2 along x and y axis and dz2 okay a dumbbell on z axis and ring perpendicular to the dumbbell around the nucleus clear है Yes. प्लस ये 5 ऑर्बिटल आपको नेक्स्ट ईयर एक चैप्टर कोऑर्डिनेट केमिस्ट्री उसमें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है वहां पे आपको लगेंगे बहुत ज्यादा डिटेल में मतलब हमने जितना अभी मैंने बताया आपको याद रखना है नेक्स्ट ईयर के लिए भी तो प्लस यहाँ पे 3 ऑर्बिटल है कितने और कौन से ऑर्बिटल dxy dyz एंड dxz कहाँ पे दे आर बिटवीन द एक्सिस राइट और 2 ऑर्बिटल कौन सा dx2 y2 एंड दूसरा बोलिए d z2 ये कहाँ पे along the axis so total how many Along the- orbitals are there there are 5 orbitals dxy dxy dyz dxz which are along the axis and d x2 y2 and d z2 between the sorry along the axis so between the axis along the axis total orbital 5 and total electrons 10 any doubt in d orbitals No, sir. No, sir. the question can be asked draw shape of d orbital तो क्लास एक सिंपल है क्वेश्चन है d orbital का शेप ड्रॉ करना है आपको तो आप ड्रॉ कर सकते हो ठीक है क्लास एक क्वेश्चन है आपके लिए हाँ बोलिए ना सर पर थर्ड शेल की मैक्सिमम कैपेसिटी 18 इलेक्ट्रॉन्स की है। हो गया ना 18 हो गया देखो कैसे एस ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन गए बच्चा 2 ओके px में 2 py में 2 pz में 2 कितने हो गए 2 प्लस 2 प्लस 6 कितने हो गए काउंट करो 2 प्लस 6 8 8 2 प्लस 6 8 अभी ये 2 कितना 10 12 14 16 एंड 18 है 18 का कैपेसिटी आपका डाउट क्लियर हो गया सर नहीं? समझा। हाँ तो देखो एस सबशेल में एक ऑर्बिटल एस ऑर्बिटल विच हैज 2 इलेक्ट्रॉन पी सबशेल हैज 3 ऑर्बिटल px py pz तो 2 2 2
total 6 electron. D subshell 5 orbitals, dxy, dyz, dxz, dx2y2, dz2, 2 2 2 2 2 2 2, total 10 electron. So 2 plus 6 plus 10, total 18 electrons in third shell. Agree? Yes, sir. Okay, good. Yes. प्लस एक चीज और बताता आपको. My question is, ये जो z axis को दिख रहा है z axis. Yes, sir. प्लस अगर ये प्लेन z एक्सिस से मैं एक प्लेन ड्रॉ करता हूँ या फिर मैं x एक्सिस से प्लेन ड्रॉ करता हूँ, राइट? यहाँ पे z एक्सिस से या फिर x एक्सिस से प्लेन ड्रॉ करता हूँ, तो प्लस उस प्लेन में इलेक्ट्रॉन होंगे नहीं होंगे उस प्लेन में? प्लस इलेक्ट्रॉन कहाँ पे है? जो शेड हमने शेड किया कौन से कलर से? Yellow. Hello. तो प्लस z एक्सिस से मैं अभी क्या बात कर रहा हूँ? प्लेन. अब आई होप सबको प्लेन समझता है. तो प्लस जहाँ पे जो z एक्सिस में एक प्लेन ड्रॉ करता हूँ ऐसा z एक्सिस पे या फिर x एक्सिस पे प्लेन ड्रॉ करता हूँ, तो प्लस उस प्लेन में इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं नहीं हो सकता है? बताओ मुझे. No. मतलब मैं पूछ रहा हूँ, चलो मैं बताता हूँ आपको. चलो आपको दिमाग में नहीं जा रहा तो मुझे तो प्लस यहाँ पे इलेक्ट्रॉन हो सकता है? नहीं, यहाँ पे नहीं, यहाँ पे नहीं, नहीं नहीं, यहाँ पे नहीं, यहाँ पे नहीं. तो प्लस इस प्लेन में इलेक्ट्रॉन किधर भी नहीं हो सकते, बराबर ना? Yes, sir. Yes. सिमिलरली x एक्सिस पे प्लस ये 3 डायमेंशन रीजन नहीं है. प्लेन बोला तो कितने डायमेंशन होते प्लेन में? हाउ मेनी डायमेंशन इन प्लेन? 2 डायमेंशन. Dimensional. 2 dimension. तो प्लस इस प्लेन में इलेक्ट्रॉन है या नहीं है? नहीं है। नहीं है, sir. नहीं है. तो क्लास दैट 2 डायमेंशनल रीजन जहां पे इलेक्ट्रॉन नहीं हो सकता, प्लस वी कॉल दैट रीजन एज व्हाट? नोडल प्लेन. क्या बोलते हैं इसको? Nodal. नोडल प्लेन. द प्लेन पासिंग थ्रू न्यूक्लियस. एक बार बोलो, द प्लेन पासिंग थ्रू न्यूक्लियस where probability of finding electron in that plane is 0 is called as what? Nodal plane. Nodal plane. The plane passing through, no, the plane passing through nucleus. The plane passing through nucleus, and the probability of finding electron in that plane is 0. Such plane is called as what? Zero. Nodal plane. Good. तो अभी आते हैं हम लोग फोर्थ शेल में. लास्ट फोर्थ शेल में आते हैं. Plane. क्लास n से n इक्वल टू 4. क्लास अभी आप हेल्प करो मुझे. n इक्वल टू 4 मतलब कितना सबशेल होता है इसमें? s सबशेल होता है, राइट? s सबशेल has only one orbital. Which orbital? S orbital. What is shape of s orbital? Spherical. Spherical. Which can have maximum 2 electron. 2 electron. प्लस फोर्थ शेल में और कौन सा सबशेल होगा? P. सबशेल. फोर्थ शेल में मैक्सिमम कैपेसिटी इज हाउ मच? 6. 32 ना? हाँ. p सबशेल. क्या p सबशेल how many p सबशेल has how many orbitals? px orbital 2 electrons, p orbital 2 electron. pz PZ. orbital 2 electrons. क्या टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? 6 electron. 6 Okay. electron. प्लस अगेन तो फोर्थ शेल has which subshell? D. D subshell. फिर में नेम ऑफ ऑर्बिटल अगर आपको याद है थोड़े बहुत तो. DXY, DXY, हाँ बोलो आगे. DYZ, DYZ, हाँ. DXZ, DX2, DX2Y2, Square Y square. हाँ चलेगा. x2 y2 बोलो, x2 y2 बोलो या फिर DZ2, Z square. प्लस कितने हो गए टोटल इलेक्ट्रॉन्स? Sir, 10. 10. 10, 10 तो यहाँ पे टोटल 2, यहाँ पे 6, यहाँ पे 10. प्लस अभी भी कितने इलेक्ट्रॉन भरने बाकी है, बताओ मुझे. Sir, 60. 14, 14. 2 प्लस 6 प्लस 10 होता है 18. 18 32 माइनस 18 कितना होता है? 14 होता है. 14, तो 14 इलेक्ट्रॉन भरना बाकी है. तो 14 इलेक्ट्रॉन भरने के लिए हमारे पास कौन सा सबशेल होता है? F. F, सबशेल. F सबशेल. ठीक है, F सबशेल. तो क्लास F सबशेल में होते हैं. तो अब ये F सबशेल के ऑर्बिटल्स का शेप बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है. वो आपको कोई भी एग्जाम में नहीं, कोई बुक में लिखा भी नहीं, एडवांस में भी नहीं है. ठीक है. तो F सबशेल होता है ना, उसके पास कितने ऑर्बिटल होते हैं? 7. 7 ऑर्बिटल्स. इतना याद रखो, क्योंकि आपको हर एक ऑर्बिटल में वी कैन पुट मैक्सिमम हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स? हर एक ऑर्बिटल वी कैन मैक्सिमम पुट 2 इलेक्ट्रॉन्स.
तो अगर 14 इलेक्ट्रॉन रखने के लिए कितने ऑर्बिटल लगेंगे आपको? 7 orbital. तो 7 ऑर्बिटल होते हैं, तो 7 2 जा टोटल कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उसमें एफ सबशेल में? 14, राइट? 14. बराबर 14, ये बेटर रहेगा। हर एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 7 ऑर्बिटल में कितने होंगे? 14। ओके, यहाँ पे कितने ऑर्बिटल होते हैं? यहाँ पे 5 होते हैं, राइट? तो हर एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन, तो 5 ऑर्बिटल टोटल इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? 10। यहाँ पे हर एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, टोटल ऑर्बिटल 3 है, तो टोटल इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? 6। एक ही ऑर्बिटल है जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन है, तो टोटल इलेक्ट्रॉन्स आर 2, प्लस इफ यू टेक दिस टोटल इज 32 इलेक्ट्रॉन। तो प्लस यहाँ पे एक चीज आपको याद रखना है, क्या? एफ सबशेल हाउ मेनी ऑर्बिटल्स? 7 orbitals. 7 orbitals. Okay, okay, and contain maximum how many electrons? 14. 14. चलो अब बात करते हैं हम लोग। यहाँ पे अगर बात करते हैं, ये कौन सा ऑर्बिटल बताओ मुझे? यहाँ पे हाँ, px py pz, राइट? p सबशेल में कौन सा ऑर्बिटल? px ऑर्बिटल, py ऑर्बिटल एंड pz ऑर्बिटल। कस तीनों का शेप सेम है? मैं पूछ रहा हूँ, तीनों का शेप सेम है? px का शेप भी डम्बल है, Yes, sir. डम्बल है, और pz का शेप भी क्या है? डम्बल है। तीनों का शेप सेम है, साइज सेम है, सब सेम है। डिफरेंस क्या है? सिर्फ एक ऑर्बिटल एक्स एक्सिस पे, एक वाई पे और एक जेड पे, ठीक है? तो बस px ऑर्बिटल किसी भी सबशेल में जो आप देखते हो, px ऑर्बिटल, py ऑर्बिटल एंड pz ऑर्बिटल, तीनों का एनर्जी क्या होता है? तीनों का एनर्जी क्या होता है? सेम होता है। याद रखो, एनर्जी क्या होता है? सेम होता है। px ऑर्बिटल, py ऑर्बिटल, pz ऑर्बिटल, तीनों का एनर्जी क्या होता है? सेम होता है, एनर्जी सेम। क्लास इन तीनों को हम लोग बोलते हैं, क्लास एक केमिस्ट्री में टर्म है, नाम बड़ा है पर मीनिंग बहुत सिंपल है, डीजेनरेट ऑर्बिटल्स। क्या बोलते हैं इसको? बोले एक बार, Degenerate orbitals. थोड़ा degenerate orbitals, the orbitals which have same energy। तो प्लस px py pz का एनर्जी सेम होता है। सिमिलरली dxy, बोलो dyz, dxz, dx2y2 एंड dz2, इनका भी एनर्जी क्या होता है? सेम होता है। तो ये ऑर्बिटल भी Same. कैसे हो गए? डीजेनरेट ऑर्बिटल्स। क्या हो गए ये? डीजेनरेट ऑर्बिटल्स। तो p सबशेल में 3 डीजेनरेट ऑर्बिटल होते हैं, d सबशेल में 5 डीजेनरेट ऑर्बिटल होते हैं, और f सबशेल में 7 डीजेनरेट ऑर्बिटल्स होते हैं। f सबशेल में कितने होते हैं? 7 डीजेनरेट ऑर्बिटल्स। आर यू क्लियर? हाँ, तो क्लास चलो लास्ट जाते एक क्वेश्चन पूछता हूँ मैं, मैं पहले स्क्रीन शेयरिंग स्टॉप कर देता हूँ। हाँ क्लास रुको, मुझे आपको एक वीडियो दिखाना है। हाँ क्लास, सबसे पहले S subshell has how many subshell? S subshell has how many orbitals? 1 orbital. नाम बोलो। S orbital. S orbital. शेप क्या है? Spherical. Spherical. सेकंड शेल में, 2 electrons. सेकंड शेल में कितने सबशेल होते हैं? 3 orbitals. सेकंड शेल में, हाँ सेकंड शेल में कितने सबशेल होते हैं? S subshell एंड P subshell. P subshell. S subshell में कितने ऑर्बिटल होते हैं? 1 orbital. Orbital. वेरी गुड, वन। नाम क्या है उसका? 2s S orbital. orbit. ऑर्बिटल। और दूसरे कौन सा ऑर्बिटल होता है P सबशेल में? P subshell में 3 orbital होता है। px Z. प्लस थर्ड शेल में जाओगे तो कितने सबशेल होते हैं? 3। 3 S subshell, P subshell एंड D. D subshell. ओके। S subshell में कितने ऑर्बिटल होते हैं? एक ही। 1 A1. नाम क्या है उसका? S ऑर्बिटल। S orbital. P सबशेल में 3 ऑर्बिटल होते हैं, px py एंड PZ. और D सबशेल में कितने ऑर्बिटल होते हैं? 5, dxy pyz dxz dx2y2 एंड d Z. Z2. प्लस फोर्थ शेल में कितने सबशेल्स होते हैं? 7. Oh, नहीं, फोर्थ शेल में 4 Four. subshell. फोर्थ सबशेल पहला S सबशेल व्हिच Four कंटेन subshell. 1 subshell. 1 S subshell. S सबशेल। देखो फोर्थ शेल में S सबशेल होता है, S सबशेल में एक ही ऑर्बिटल होता है, कौन सा? S ऑर्बिटल। बाद में P सबशेल में 3 ऑर्बिटल होते हैं, px py pz। D सबशेल में 5 ऑर्बिटल होते हैं, राइट? और F सबशेल में 7 ऑर्बिटल होते हैं। 7. आर यू क्लियर? Yes, Yes. sir. अब मैं आपस स्क्रीन शेयर कर रहा हूं आपके साथ।
एक मिनट, एंड वी आर गोइंग टू सी, जो हमने अब देखा ये 3 डायमेंशन में देखेंगे हम लोग प्रॉपर। आपके साथ स्क्रीन To शेयर हो get गया? the smile you've always Yes, wanted, Invis is the answer. Especially into Oh no 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 no. बस ये कितने एक्सिस है? 3 एक्सिस, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस, राइट? 3 कलर के 3 एक्सिस है, रेड कलर, ब्लू कलर एंड ग्रीन कलर। प्लस ये सबसे पहले जो आ रहा है स्फेरिकल शेप, ये क्या आपका फर्स्ट शेल का एस ऑर्बिटल? कौन सा फर्स्ट शेल का एस ऑर्बिटल? नाम क्या है उसका? 1s, बराबर ना? Yes, sir. नेम विल बी Yes, 1, sir. देखो नेम विल बी 1s, तो क्लास 1s ऑर्बिटल दिख रहा है आपको? हाँ सर। क्लास अभी हम लोग सेकंड शेल में जाएंगे। क्लास सेकंड शेल में कौन सा सबशेल होता है? एस सबशेल एंड P p सब। subshell. तो क्लास एस सबशेल का कौन सा ऑर्बिटल आएगा यहाँ पे? 2s ऑर्बिटल, बराबर है? दिख रहा है आपको 2s? Sir, दिख रहा है yes. आपको 2s? प्लस सेकंड शेल में और कितने सब कौन सा सबशेल होता है? P p subshell. सबशेल P subshell. 3 or में 3 ऑर्बिटल, कौन सा? px ऑर्बिटल, py ऑर्बिटल एंड PZ. pz ऑर्बिटल, राइट? px ऑर्बिटल डंबल along x axis, py ऑर्बिटल डंबल along y axis and pz ऑर्बिटल डंबल along z axis, राइट? तो Z बस बताओ axis. ये क्या बोलो, डंबल है कौन से एक्सिस पे? x एक्सिस पे, राइट? Axis. समझा? अभी क्या आएगा? डंबल ऑन विच एक्सिस? y एक्सिस। Y axis. अभी तीसरा क्या Y आएगा? axis. Z along axis. z एक्सिस, दिख रहा है? प्लस सेकंड शेल कंप्लीट हो गया? Yes. हाँ, क्योंकि सेकंड शेल में सिर्फ एस एंड पी होता है। अभी थर्ड शेल में, क्लास थर्ड शेल में क्या आएगा? अभी एस पी डी, राइट? तो क्लास ये बड़ा वाला स्फीयर क्या पता मुझे? 3s or एस ऑर्बिटल, वेरी गुड, एस Yes, ऑर्बिटल। हाँ, प्लस बाद में क्या आएगा? पी सबशेल, पी सबशेल, पी सबशेल में कौन सा आएगा? पी एक्स ऑर्बिटल, राइट? Yes. देखो sir. 2s मुझे तो 2s से 2px से 3px बड़ा है, हाँ ना? हाँ. ये 2p 3p y, और तीसरा क्या आएगा? अभी 3p। Right. ओके, क्लास अभी कौन सा शेल बचा बोलो? डी सबशेल, बराबर? D. T. क्लास एक मिनट मुझे तो एक मिनट, ये रुको दो क्लास। मुझे तो ये डंबल है, उसके बीच में दिख रहा है मेदुला जैसा रिंग, Yes sir. हाँ sir. उसका नाम क्या होता है? डी Z2। क्या होता है उसका नाम? डी Z2। तो प्लस कैसा होता है वो ऑर्बिटल? डंबल ऑन z एक्सिस और रिंग अराउंड दैट z एक्सिस, राइट? चेक करो, देखो जब आएगा तो बताओ मुझे। डंबल ऑन z एक्सिस आ रहा है, डंबल ऑन z एक्सिस एंड रिंग अराउंड दैट z एक्सिस। आर यू क्लियर? हाँ, प्लस ये बताओ मुझे, ये डबल डंबल है, राइट? Yes. Sir. Yes sir. कोई बताएगा कहाँ पे जाएगा वो? बिटवीन जाएगा, ऑन द जाएगा एक्सिस? Between. Along the. On the. एक्स टू वाई तो कहाँ पे होता है? एग्जैक्टली ऑन एक्स एंड वाई एक्सिस। तो देखो ये डबल डंबल एग्जैक्टली एक्स एंड वाई एक्सिस पे लाई करेगा, देखो एग्जैक्टली ऑन रहेगा वो, है? देखो चेक करो, एग्जैक्टली एक्स एंड वाई एक्सिस के रहेगा, ऊपर रहेगा, बराबर है? मतलब एक्स वाई कहाँ पे रहेगा? एक्स एंड वाई एक्सिस के Between. बीच में रहेगा, Between. एक्स एंड वाई एक्सिस। देखो चेक करो, बिटवीन एक्स एंड वाई एक्सिस, देखो जाएगा बिटवीन जाएगा, देखो वो एक्सिस के ऊपर नहीं, एक्सिस के बीच में जाएगा। गया बीच में, गया ना? डी एक्स जेड कहाँ पे जाएगा? एक्स एंड जेड एक्सिस के बीच में, बराबर? Between. एक्स एंड जेड एक्सिस के बीच में जाएगा। एंड वाई जेड कहाँ पे जाएगा? वाई एंड जेड एक्सिस के बीच में जाएगा, राइट? Yes. Now this is practically impossible to draw on a paper एक साथ। तो class this is structure of atom, very 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 complicated, right? I guess ये आपको समझा? Yes sir. Class this was the very important part of the chapter क्योंकि उसका बहुत सारे terms depend अपने। The shape of orbitals, I hope आपको ये सब समझा। Okay, so any question before I leave? मैं जाने से पहले किसी को क्वेश्चन पूछना है? Before I leave the class, any question, any doubt?